Well, today we'll starting with the alcohol portion from alcohols, phenols and ethers. Let's focus on the alcohols. Alcohols are hydroxy derivatives of alkanes. Now, what does this particular statement means that they are hydroxy derivatives of alkane? You know, alkanes are RH. These are alkanes. So what you do, you just remove one hydrogen atom and in place of it you put a hydroxyl group. So you get ROH. This is what? An alcohol. So this way, this particular line is being explained that this is what? An alcohol. Alcohols are basically, they contains this is a functional group. OH group is the functional group, and because of it you know that if you see that these particular alcohols may contains one OH group or two or three, because of that they are classified in different manner. We will see that the classification also. Like for example, if I say that if a particular alcohol contains only one OH group, so that particular alcohol comes in monohydric. So I am telling you about this. There are monohydric is there, monohydric alcohol. Then I am writing in first, right? So these are the names: monohydric, dihydric alcohol and trihydric. Now mono means it will contain one OH group, and di means two OH group will be present. Tri means three OH group will be present. So let's focus on the examples. Like for examples, the day you have seen this methyl alcohol, ethyl alcohol, they are coming in the monohydric alcohol. Why? They are containing only single OH groups. ठीक है ना? Di means, di condition means then when they are containing two particular OH group. So these are glycols, and now if you see, this can be written in this manner also, and some books it is written in this manner, this way also. So two carbon atom, it is ethylene glycol, it's been there. So let's focus on other examples for dihydric alcohols. This is propylene glycol, right? So why it is propylene? Just see, there are three carbon atoms, so it's come in the propylene glycol. There are two carbon atoms, then it is ethylene glycol. So let's come to this trihydric alcohols. They will contain three OH groups. Just see, glycerine you are seeing in your day-to-day life. Its formula is this, जिसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन जो हम घर में यूज़ करते हैं. सो इट इज़ कंटेनिंग थ्री OH ग्रुप्स, सो दैट्स वाई इट्स कमिंग इन ट्राईहाइड्रिक alcohols. There is one more classification of alcohols, and this particular classification is based on the mode of attachment of OH group to the sp hybridized carbon atom. बेसिकली जो कार्बन आइटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उस पर OH ग्रुप किस वे से अटैच्ड हो रहा है उससे भी क्लासिफिकेशन होते हैं. ठीक है, तो उसमें भी तीन कैटेगरीज़ हैं. मैं बता रही हूँ, एक इंट्रोडक्टरी है ये, आपको डेफिनेशंस कोई नहीं पूछेगा, बट द वर्ड्स विल कम इन योर एग्जामिनेशन. सो एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन्स. प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्शरी अल्कोहल. बेसिकली दिस अराइजेस ऑन द मोड्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप to sp3 hybridized carbon atom of alcohol. So let's come to the first part. If we are talking about primary alcohol, तो primary alcohol में क्या होता है, जो OH group is attached to the primary carbon atom. So you must be attached seen in class 11th आपने देखा था कि alcohols का क्या केस होता है. तो आपको पता है, जैसे जो भी आपका सिंपल ये वाला केस है ना, जहाँ मिथाइल अल्कोहल था या इथाइल अल्कोहल आ जाए, ये सब क्या चीज़ें हैं आपकी, ये सब आपकी ये प्राइमरी फर्स्ट कार्बन आइटम है ये. ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली जो अल्कोहल है वहाँ अटैच्ड हो जाए. ठीक है, अब इसको हम जज कैसे करते हैं, या तो एक भी अल्काइल ग्रुप ना हो या सिंगल अल्काइल ग्रुप हो, उससे हम जज करते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल में आता है. ये आपका सेकेंडरी कार्बन आइटम है ना, ये देखो दो अल्काइल ग्रुप्स इससे अटैच है, तो इस पे OH ग्रुप अटैच्ड हो, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में. टर्शरी में अगर हम केसेस देखें तो जो कार्बन आइटम है वो सब के सब हाइड्रोजन उसके रिप्लेस होकर अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, और अब OH ग्रुप अटैच्ड होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्शरी अल्कोहल. तो इसमें क्या है, OH ग्रुप इज अटैच टू द टर्शरी कार्बन आइटम. दिस इज द टर्शरी कार्बन आइटम. अगर आपको याद हो, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटाइंस, कार्बोएनाइंस, वहाँ पे आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंडीशन सारी पढ़ी हैं. तो वही सब चीज़ें हैं, मे पॉसिबल बुक्स में गिवन हो, बुक्स में नहीं भी गिवन हो. तो ये आपका कंडीशंस हैं. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, चाहो तो CH3, ठीक है, CHOH और CH3, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक, तो ये आपका आइसो प्रोपाइल अल्कोहल होता है.
ये बाद में देख लेंगे, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। सो दिस थिंग्स इज बीन देयर। तो ये एक जनरल वे है टाइप्स ऑफ कह सकते हो क्लासिफिकेशंस अल्कोहल की। नाउ विल सी द नेमिंग्स ऑफ द अल्कोहल। नाउ नॉमेनक्लेचर इफ़ यू रिमेंबर वी ऑलवेज सेज टू सिस्टम। कॉमन सिस्टम होता है ना, जो कॉमन नेमिंग होती है, जिसको हम ट्राइवियल सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा तो हमारा पेटेंट है जो हम IUPAC नेम, वैसे तो कार्बिनॉल सिस्टम भी है इसमें, और वो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे कोर्स में नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक आध एग्जांपल्स आपको सबके बता देंगे सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट नेमिंग सिस्टम्स। तो ये 3 सिस्टम्स हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। कॉमन नेम तो नॉर्मली आप जो जैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्राइमरी ये या कोई भी जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिला, तो आपने सिंपली आपको जो चलता है वो आप चलाते हुए एल्काइल अल्कोहल, ठीक है, ये वे होता है जो फर्स्ट कॉमन ट्राइबल सिस्टम में होता है। तो इसको कंडीशन या कुछ भी हो, जैसे भाई मिथाइल अल्कोहल आपको दिया रखा है तो आपने मिथाइल अल्कोहल लिख दिया, आपका प्रोपाइल अल्कोहल है तो आपने प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है तो आपने इथाइल अल्कोहल लिख दिया, ये आपको पता है ना, आपने सीधे इसको इथाइल अल्कोहल लिख दिया। इथाइल अल्कोहल क्यों लिखा? क्योंकि 2 कार्बन एटम्स थे तो आपने इथाइल वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद तुमने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग ना आइज़ो या टर्शरी ये सब यूज़ करते हैं ना, तो आइज़ो की कंडीशन क्या होती है कि जब ना कार्बन एटम पे एक तरफ ब्रांचेस होती हैं, अगर याद हो क्लास 10th का या 11th का भी, तो ये जैसे ये कंडीशन हमारी थी ना, वैसे तो ये प्रोपाइल अल्कोहल है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको सिंपली प्रोपाइल अल्कोहल लिखेंगे, है ना। लेकिन क्या है, इस कार्बन एटम्स की या सिंगल एक तरफ की ब्रांचिंग है तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? आइजो प्रोपाइल अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही जैसे हमारा जो हमने ये टर्शरी अल्कोहल्स देखे थे अपने, ठीक, तो ये इस कंडीशन में होती है जो कार्बन की दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है, तो याद हो रहा होगा कि उसमें भी हम लोग अलग कंडीशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तीन कंडीशंस हैं, तो आपने क्या यूज़ कर लिया? टर्शरी वर्ड यूज़ करके, और अपना क्योंकि 4 कार्बन एटम है, ब्यूटाइल है, क्योंकि ब्रांचिंग में है ना, इसीलिए इस तरह से आपने इसका नेमिंग कर दिया। इनफैक्ट आपके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अलग अलग एग्जांपल्स लेके चलते हो जहाँ पे आप कॉमन नेम में, तो देखो कभी के कुछ चीज़ों के ये होते हैं, जैसे कॉमन नेम्स भी चलते हैं। जैसे हमारे पास नहीं था कि अभी हमने ग्लाइकॉल देखा था, तो वो बेसिकली क्या है, ग्लाइकॉल तो एक कॉमन नेम चलता है, तो हमने सिंपल क्या करा था, ग्लाइकॉल की कंडीशन में एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, जो वैसे हम ग्लाइकॉल से बोलते हैं, लेकिन क्योंकि 2 कार्बन आइटम में, ठीक है, बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये कंडीशन ये रही होगी, ये इथाइन की कंडीशन रही होगी, इसमें डबल बॉन्ड हटा होगा, जब ये डबल बॉन्ड हटा होगा तो इसने यहाँ पे हट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ होगा, OH हो गया, तो ये बेसिकली इसका जो पेरेंट है वो तो इथिलीन ही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका? इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये कंडीशन आपकी होगी। तो ये चीज़ें थोड़ी यू हैव टू रिमेंबर वाइल राइटिंग द नेम्स, ठीक है। जो अल्कोहल्स बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, जैसे कोई भी अल्कोहल अगर मिथाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कार्बिनॉल, मतलब अब तो ये रेयर ऑफ द रेयर केस आएगा, लेकिन पढ़ रहे हैं तो समझा दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया? कार्बिनॉल। अब इसको ऐसे लिख लो या स्ट्रक्चर इलेबरेट करके लिख लो, डजेंट मैटर, ठीक है। कंडीशन क्या है? ये कार्बिनॉल ही इससे बोला जाएगा। अब इसमें अटैच, अब जैसे ये इसको स्ट्रक्चर से इजी समझ, सब सपोज करो एक हटा H और उसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा, ठीक है, तो अब ये एक कार्बन आइटम इस पोर्शन के लिए, ये तो मिथाइल का ही पोर्शन है, तो ये कार्बिनॉल ये एक्सप्लेन करेगा। ये आगे भी मिथाइल वर्ड लगा हुआ है, मतलब मिथाइल के लिए एल्काइल ग्रुप है जो कि सिंगल कार्बन आइटम यानी मिथाइल अटैच्ड है, तो ये आप इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। अब यही अगर यहाँ पे टीचर C2H5 लगा दे, है ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? इस पोर्शन के लिए तो आपको वही कार्बिनॉल ही लेना है, और ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइल। तो आई थिंक द नेम इज़ बीन क्लियर टू यू। इसको आप इलेबरेट भी कर सकती थी टीचर, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना, तो नाम तो वही होगा, चाहे इसको इलेबरेट करके लिखो या कंडेंस करके लिखो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो कार्बिनॉल सिस्टम इस तरह से चलता है हमारा। अब जैसे सपोज़ करो इसको एक और टेस्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ CH3, यहाँ पे भी CH3, तो यहाँ क्या हो जाता है? डाई मिथाइल हो जाता है। अगर यहाँ C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, तो क्या हो जाता है? ये डाई इथाइल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है हमें कि क्या आप यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
दिस वे यू हैव टू फोकस ऑन इट। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। इधर की जगह चेंज कर, मतलब यहाँ तो ओ एच तो रहेगा ही ना फंक्शन ग्रुप। मेनली ये कि दो जगह आपके सी एच थ्री रहे, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, कि दो जगह आपका सी एच थ्री रहे, ओ एच तो दिखना ही दिखना है, नहीं तो भाई ओ एच ही हटा देंगे तो फिर कार्बिनॉल कहाँ से रहेगा। तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट इज़ IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम में याद करो तो आप हमेशा एल्केनॉल वर्ड यूज़ करते थे, ये वर्ड यूज़ होता था। तो उसके लिए आप सिंपल होता था कि जो एल्केन होता था, हमने हमेशा सिखाया है एल्केन में से ई माइनस कर दो और इसकी जगह OL लगा दो, तो ये आपका एल्केनॉल हो जाता था। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वही पुराना हम लोग लेके चल रहे हैं मिथाइल अल्कोहल को लेके चलोगे और उसको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन एटम है तो आपका मिथेनॉल है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बढ़ा लो, अब ये बड़ा नंबर है भाई, ये तो दिख ही रहा है स्मार्ट हो प्रोपेनॉल ही है, लेकिन स्पेशली क्या है कि नंबरी चेन है तो आपको नंबरिंग में लिखनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन आटम से शुरू है तो यहाँ से 1 लिखोगे, 1 2 3, यहाँ से तो नहीं लिखोगे। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखते थे, याद होगा, प्रोपेन करके ई हट जाता है, फिर पोजीशन लिखते हैं, फिर OL लिखते हैं। तो दिस वे इज़ ऑल्सो देयर। अब हमारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो अभी हमने ग्लाइकॉल्स को देखा था। ग्लाइकॉल्स आपने देखा था, मैं समझा चुकी हूँ आपको ये कहाँ से बना है आपका, इसकी भी आप IUPAC नेम आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप में 1 2 आप लगा लीजिए। तो 2 कार्बन आइटम है, 2 के लिए क्या है, ईथेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, ईथेन। ठीक है, डैश लगा के 1,2, फिर डैश लगा के डाईऑल। ठीक है, अगर आपको याद हो क्लास 11 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जब डाई एल्कोहल्स होते हैं तो यहाँ पोजीशन लगती है और हम यहाँ डाईऑल्स लगा देते हैं, एल्केन लिख के डाईऑल्स। अगर वही चीज़ आपका ट्रिपल बॉन्ड का होगा तो एल्केन्स लिख के आप ट्राईऑल लगा देंगे। जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, अब मैं यहाँ बता देती हूँ, जगह है मेरे पास, जब हमने CH2OH जो ग्लीसरीन हमने देखा था फॉर्मूला, अब ये बेसिकली ट्राई एल्कोहल्स का केस था ना, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स का। तो यहाँ पे भी अगर याद हो क्लास 11 का, तो हमने IUPAC नेम में लिखा था एल्केन लिख के और ट्राई ऑल लिख देते थे हम लोग। अब 3 कार्बन आइटम है तो आपने क्या यूज़ करा, प्रोपेन। फिर पोजीशन चला लो भैया, 1 2 3 कहीं से भी चला लो, सब एक से ही है। डैश लगाया 1, 2, 3, डैश लगाया ट्राईऑल। ठीक है, ये आपका IUPAC नेम, ये फॉर्मूला है, इसके आगे पोजीशन लगेगी। सो दिस वे वी हैव कवर अप ऑल द क्लासिफिकेशन। कुछ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर हम देखेंगे अल्कोहल्स में। सो वी विल सी दैट द फंक्शनल ग्रुप इज़ व्हाट, OH ग्रुप होता है अल्कोहल्स में। अब इस OH ग्रुप में अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें तो ऑक्सीजन आइटम होता है, और ऑक्सीजन आइटम जो होता है वो आपका, इसमें जो ऑक्सीजन आइटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। जैसे कैसे, अब ऑक्सीजन आपको मालूम है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यू नो हाउ टू राइट डाउन। ठीक है, 2 2 और 2px2, 2py1, 2pz1। ठीक है, अब इसमें जो हमने देखा कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करते हैं। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे तो ये पूरा ऑक्यूपाइड होता है, S3kp। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज़ बीन शोन बाय द ऑक्सीजन एटम। ठीक, ये चीज़ होती है इसमें। अब इसमें क्योंकि अगर जनरल देखे चलोगे तो ये होता है ना, S1s2, 2s2, वही 2p4। अब उसी 2p4 को हमने इस तरह से एलैबोरेट कर दिया, भाई इसमें px py pz होता है तो हमने इसमें ये लगा दिए अपने। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के होते हैं जो सिंपली ऑक्यूपाइड करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उसमें क्या होता है, आपको मालूम है ऑक्सीजन आइटम के पास हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो रिमेनिंग जो होते हैं वो सब पोजेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ खाली एक तो बात है नहीं, या तो कई आपके मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। ठीक है, अब अभी जो मैंने बात कही कि इनके पास जो दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो सिंपली ऑक्यूपाइड होते हैं, और बाकी जो दो होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड करते हैं। तो ये बेसिकली ये कंडीशन जो है ये आपकी दिस इज अराइजिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड करें। मैं ये बात कही थी ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 ही जो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो 2 sp2 होते हैं, एक तो आपका हाइड्रोजन एटम से करता है, जो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है
उससे ओवरलैप करता है। तो sp3 सभी बना रहे हैं, sp3 सब बना, भाई 4 हैं, चारों भाई देखो चारों sp3 का ही कंडीशन है आपकी। sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, लेकिन यहाँ पे 2 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, एक s है ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह, और ये sp3 जो है ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेसिकली वो आपका एल्काइल ग्रुप की वजह से हो रहा है, ठीक है। और तुम्हें मालूम है कि सब जगह इसमें जो है सिंगल बॉन्ड ही बनता है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रो O और सिंगल बॉन्ड H जो है वो पाई बॉन्ड ही तो बना रहा है यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ROR बना रहा है, ये भी आपका पाई बॉन्ड बना रहा है भाई, ऑक्सीजन ही के तो हैं ये ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बना RO, और यहाँ पे क्या बना O और H बना, तो ये बेसिकली क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड्स दे आर फॉर्मिंग। तो इस तरह से जो आपका पूरा फॉर्मूला जब जॉइंड अप होगा तो ये ROH बॉन्ड जो है बनाता है आपका। और इसमें देखो बॉन्ड एंगल्स भी अवेलेबल होते हैं। बॉन्ड एंगल्स कैसे अवेलेबल होते हैं, अगर आप इसको देखो ये R है और यहाँ पे आपका H है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड एंगल भी ये बनाए गए 105 पॉइंट आपका 5, ठीक है, डिग्री। ये बेसिकली श्रिंक हो गया है ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये श्रिंक हुआ एक्चुअल में होना चाहिए था, अगर इसका बॉन्ड को शो करना चाहिए था करीबन 109, क्योंकि जो है वो है कि इतना इसको शो करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं शो कर रहा है, वो कम होके इतना शो कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि जो बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक हो गया, क्यों? बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी एल्कोहल्स की आ जाती है, आपको इस तरह से चीज़ों को समझना है।